Moving on, our next speaker is Mr. Mohan Chandra Bora sir, a dedicated farmer from Assam's Johrat district and the founder of the Annapurna Rice Library. His pioneering efforts in preserving the agricultural heritage of the region and safeguarding over 500 indigenous rice varieties have made a significant impact on sustainable agriculture. Before we hear from him, let us watch a brief film that highlights his remarkable contributions and commitment to ensuring food security through climate-resilient practices. I request the technical team to kindly relay the introduction film. Shri Mohan Chandra Bora is a dedicated farmer from Assam's Jorhat district, renowned for his pioneering efforts in preserving the agricultural heritage of the region. At the age of 41, he established the Annapurna Rice Library, a unique initiative aimed at safeguarding over 500 indigenous rice varieties. Motivated by a deep desire to protect and revive traditional agriculture, Shri Bora's library features resilient seeds such as the flood-tolerant Baudhan and the medicinal Navara. Inspired by his father and his love for reading, he embarked on this project 15 years ago. Despite facing financial challenges, his work has garnered international recognition, providing invaluable resources on cultivation methods and highlighting the crucial role of food diversity in ensuring food security. Shri Mohan Chandra Bora's efforts are instrumental in preserving Assam's rich cultural heritage. We warmly welcome Shri Mohan Chandra Bora. Let us now invite Sir to the stage to share his invaluable insights with us. Ladies and gentlemen, can we please have a huge round of applause for Mr. Mohan sir. Namaste, Ram Ram. Honorable Vice Chancellor sir, respected teachers and my students. And my English is not good enough to speak in front of you, so I always hesitate to speak in front of the Indian people. Indian people speak English very nicely, so pardon me for that. So I will speak in two languages, English and Hindi. And आप लोगों ने हमारे लिए बहुत बार तालियां बजाया है, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। And I'm not coming here to speak in front of you. I just coming here to talk to you. And I will ask some question to you. And if you know the answer will be one word. And please try to keep on touch with me so that I can proceed. And I can like to talk to you. Okay? So let's talk about the food. We everybody love to consume food. Different type of dishes, different kind of food. But how many of we talking about the food? How food come to our dishes? How we get the foods? How many of we know about the foods? How foods come to our dishes? Can you raise the hands? How many of we talking about the food? Okay, let it go on. And can you answer the questions? And what is the basic need for the production of food? Do you have any idea? Yeah. Do you have any idea what is the basic need for the production of food? The seed. Seed is the basic need of the production of food. In our Indian tradition, we call Anna
Brahma. Anna is Brahma. Like that way we can call seed is also Brahma. And can we say like that, that if we don't have seed, we don't have food? Can we say like that? So, अगर हमारा पास बीज नहीं होगा तो हमारा खाना भी नहीं होगा, ये हम लोग मान सकते हैं ना? तो ये और एक बात, आप लोगों को एक हॉलीवुड का मूवी का टॉपिक दे रहा हूं, अगर किसी को मन करे तो ये एक टॉपिक लेकर तो किसी को भेज सकते हैं हॉलीवुड का। सपोज ये सीड जो है ना, मैं अभी आप लोगों ने मान लिया कि इफ वी डोंट हैव सीड वी डोंट हैव फूड। हम लोगों को ये सीड हर साल चाहिए, हर साल बोने के लिए ये सीड चाहिए। अगर सीड नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा फूड हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी कारणवश एक साल जिसके पास सीड था, किसी एक सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ, ये एक साइंस फिक्शन मूवी होगा, किसी के पास जितना सीड था एक ही सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। 2025 में जिसके पास सीड था, कंपनी का सीड, फार्मर का सीड, जितने पास सीड था उन लोगों का सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? कोई अंदाजा है क्या आप लोगों का? एक ही सीड जर्मिनेशन नहीं होने से क्या होगा? और सीड बॉल में बहुत सारे सीड हमारा कंजर्व कर रखा है, फिलीपाइंस में है, वर्ल्ड का अलग अलग जगह में है, वो जहाँ पे जितना अच्छी तरह से रखा गया है वो भी सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? हमारा फूड सिक्योरिटी रहेगा क्या? हम भूख से मरे जाएंगे, हम भूख से मरे जाएंगे। तो ये सब बात हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग जितना जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर में, प्रोडक्शन के ऊपर में, प्लांट के ऊपर में जितना बात करते हैं, सीड के ऊपर में इतना बात नहीं करते हैं। आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्शन करते हैं ना, क्या देखने जाते हैं? उसमें वाइल्ड लाइफ देखने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखने जाते हैं अलग अलग। वो पिंच में जाते हैं तो वो ये टाइगर देखने जाते हैं, और हमारा काजीरंगा में बहुत सारे ये है, काजीरंगा में जाते हैं तो राइनो देखने जाते हैं। लेकिन उसमें वो काजीरंगा में राइनो जीता है और पिंच में ये टाइगर जीता है, ये किसके लिए? ये जो प्लांट है ना, अलग अलग तरह का ये प्लांट है, तो ये पेड़ है, वो नहीं होने से ये रहेगा क्या? ये राइनोसर और ये टाइगर रहेगा क्या? लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है क्या, इसमें एक लाइब्रेरी है जहाँ पे अलग अलग पेड़ का सीड रखा हुआ है, सीड का जर्मिनेशन के बारे में, सीड के ऊपर में कुछ ये लिफलेट लिखा हुआ है, पेड़ के ऊपर में लेकिन आपको मिलेगा, लेकिन सीड के ऊपर में कोई ऐसा लाइब्रेरी रखा हुआ है क्या? ये होना चाहिए। हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो उन लोगों को अपील कीजिएगा कि इसमें भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए, सीड लाइब्रेरी होना चाहिए। उसके ऊपर में अगर हम लोग कुछ रिसर्च कर सकेगा, अगर कैसे इसका कोई पेड़ का सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जर्मिनेशन कैसा होता है, कितना दिन तक हम रख सकते हैं, इसके ऊपर में कुछ होना चाहिए। और आजकल क्या होता है, ये क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ये टॉपिक है, हम लोग हर जगह में हम लोग ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर में बात करते हैं। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जब बात करते हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सीड जो है ना, ये एक दिन रिन्यूएबल एनर्जी था। सीड हम लोगों ने खरीदना नहीं पड़ा था, हमारा अपना सीड था, हमारा फार्मर सीड कंजर्व किया था, वो सीड से हम लोगों को खेत लगाया था, हम लोगों के लिए फूड उगाया था। लेकिन आजकल ये नहीं रहा, ये जो व्यवस्था नहीं रहा। आजकल अगर हाइब्रिड सीड हम लोग बाजार से खरीद कर लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर वी हैव टू बाय अगेन फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि अगर ये सीड अगले साल लगाएंगे,
आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड यील्ड नहीं मिलेगा और कभी कभी जर्मिनेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है, आप लोगों के पास 15 एकड़ लैंड है, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 15 एकड़, किसी के पास 2 एकड़ लैंड है। वो लैंड में आप लोग ये फूड उगाते हैं, आपके लिए फार्मर अपने के लिए फूड नहीं उगाते हैं, सबके लिए फूड उगाता है, फार्मर सबके लिए फूड उगाते हैं। या अगर ये फूड जब उगाते हैं, आप लोगों का बीज, ये खाद, ये प्लाविंग करने का जो ये चीज सब कुछ मार्केट से खरीद कर ओनली आप लेबर यूज करके आपकी जमीन में खेत करेगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ये तरीका जो होल प्रोडक्शन सिस्टम गोइंग टू द हैंड ऑफ सम पीपल, कैन इट बी सस्टेनेबल? थिंक अबाउट दैट। अगर हमारा ये होल प्रोडक्शन सिस्टम गोइंग टू द हैंड ऑफ सम पीपल, so how food security can be possible? The food price will be high, food price will be increased because cost of production will be very high when we depend on the market. So I always request to the farmer, request to the consumer also, so that farmer can be sustainable. So farmer के पास अपना बीज, अपना खाद, अपना ये हाथ जोतने का तरीका अपना होना चाहिए, तभी मुफ्त में आप लोगों को, सिप में आप लोगों को खाना दे पाएंगे, तभी तो हमारा फूड सस्टेनेबल रहेगा। और ये क्लाइमेट चेंज के बाद जब होता है, तब हम सीड के ऊपर में ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन आ रहा है उसमें हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि सीड ही एक चीज है जो क्लाइमेट चेंज में हम लोगों को बचा सकते हैं। अलग अलग जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है सीड का, वही हम लोगों को बचा सकते हैं। अगर सीड के ऊपर में हम इम्पोर्टेंस नहीं देकर दूसरा ज़मीन के ऊपर, दूसरा अन्य रिसोर्स के ऊपर में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, तो हमारा फूड सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा असम के बारे में थोड़ा मालूम है आप लोगों को, असम में ऐसा एक राइस वेराइटी है, फ्लैट प्रोन एरिया है, आप लोगों को मालूम है। अगर फ्लैट नहीं होगा तो वो राइस वेराइटी अच्छा नहीं होगा, वो राइस वेराइटी नहीं उगा पाएंगे, अच्छी तरह से यील्ड नहीं देगा। एक राइस वेराइटी है, अगर पहाड़ में नहीं उगाएगा तो वो राइस वेराइटी प्लेन जमीन में होगा तो ये यील्ड नहीं देगा, ये जड़ जाएगा। ऐसा अलग अलग डाइवर्सिटी है। कुछ लोग बोलता है कि हम लोग वी कैन फीड द वर्ल्ड, वी विल मेक दैट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप दैट कैन ग्रो इन वेरी हाई टेम्परेचर, very low temperature, or very in flat prone area also. But I never believe like that. I never believe those things, because I always believe that diversity is the security. Diversity is the security. अगर हजारों सालों से हम लोगों को हमारा पूर्वजों ने जितना बीज दिया है, अगर वो बीज को हम रखकर हमारा खेत आगे बढ़ाते रहेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। तो एक और दो सीड के ऊपर में अगर इम्पोर्टेंस देकर हम लोग हमारा एग्रीकल्चर ये जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम आगे बढ़ाते ले गए, तो ये क्लाइमेट चेंज की अलग अलग जो ये सिचुएशन आ रहा है उसमें हम लोग कभी नहीं बच पाएंगे। तो इसका चर्चा होना चाहिए। अगर मैडम ने बताया है कि आप लोग गांव में भी जाते हैं, तो गांव में जब जाते हैं आप लोग ये लोगों को ये अपील कीजिएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर ठीक है मान लेता हूँ आप लोग फूड नहीं उगाते हैं, आप लोग कंज्यूमर है, मैं फार्मर हूँ, मैं फूड उगाता हूँ, अगर मेरा पास फूड नहीं होगा तो हम आप लोगों को कैसे खिला पाऊंगा? क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से मैं 10 क्विंटल राइस आई कैन सेल इन द मार्केट फॉर यू, बट मेरा जो अगर यील्ड बहुत कम हो जाएगा, 10 क्विंटल भी नहीं होगा, आप लोगों को कैसे खिला पाऊंगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मे बी यू आर नॉट ए फूड प्रोड्यूसर, यू मे ऑल ऑफ यू मे बी ए कंज्यूमर, बट यू मे ऑल्सो सफर फॉर दैट। हमारा फार्मर के पास फूड नहीं होगा
फार्मर के पास अगर खाना उगाने का ये नहीं होगा तो आप लोग भी उससे नहीं बच पाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो राइस वैरायटी है, आप आई लव द ग्रेट माराठा, शिवाजी को हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, ठीक है। डू यू हैव दैट टाइप ऑफ एनी वैरायटी? जीजाबाई ने शिवाजी को खिलाया था। डू यू नो एनी दैट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ गेहूं के, ऐसा कुछ वैरायटी के बारे में जानते हैं क्या? वो जो जीजाबाई ने शिवाजी को खिलाया था और शिवाजी ने कंज्यूम किया था, अगर उस टाइम का कुछ लोग ने वो वैरायटी को यूज किया था। यही हमारा कल्चर है। सीट के ऊपर में हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, सीट के साथ हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। जो अगर हमारा एंसेस्टर को हम, if we want to keep alive of our ancestor, we have to save the seed also, because only live things they have lived for us. The seed, it can be a living heritage for India, but nobody giving importance of those very tiny little things. Nobody think about that. Many people, lots of people talking about biodiversity, herbs, plants, but nobody who is directly related to our food, directly related to our health. Nobody talk more about that matter. ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम बहुत पीछे हैं टाइम से। लास्ट में अगर मेरा कुछ जो बात में आप लोगों को अच्छा लगा तो बुरा लगा तो मुझको क्षमा कर दीजिएगा। लास्ट में आई वांट टू कंक्लूड माय स्पीच विथ ए श्लोक ऑफ उपनिषद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। A heartfelt thank you to you, sir. Your commitment to climate resilient food systems is both inspiring and motivating. Ladies and gentlemen, we will now have a question and answer session where our students will be able to ask and clarify questions that might have arisen in their minds during the session. If you have any questions you would like to ask, please approach one of the volunteers present at your nearest podiums. You will be allowed to ask questions from there. It is a humble request to both the guest and the student to please keep the question and answer short and precise so that we can take up more questions. Thank you. To begin with, we can have a question from the right side, from my right side, the first podium. My name is Sumed Bhamre from first year BSc Computer Science. My question is to Jacob sir. Since genetically modified crops are low on nutrients, how do we as consumers ensure that we are having the higher quality of grains? Could you repeat the question once more, please? Yes. Since genetically modified crops are low on nutrients, how do we as consumers ensure that we are having the higher quality of grains? Okay. Basically, if you look back at our tradition, our parents, our grandparents used to consume food according to the seasons, and they depend on local food traditions. Availability in the local market was their priority in taking decisions. So we also should try to go back to that kind of diverse food traditions. Each eco-region, each region, like for instance in Maharashtra, whether it is Vidarbha, Marathwada or Khandesh, each has its own food diversity, varietal diversity,
and food culture. So to bring back nutrition into your diet, essentially you will have to buy from the local farmers, from the local markets, look for that particular produce which is your parents, your grandparents used to consume. Revive those cooking traditions also. That's the way to bring back nutrition. Because nutrition is linked to the soil. It's not only certain elements, it's also the biota, the biome which is in the soil, which brings that little bit of nutrition, every element which is needed for our gut bacteria, our various body systems. So it's important to eat local and locally appropriate food according to seasons and bring back the diversity. It could be cultivated crops, also uncultivated food which comes from fields and also from the forest. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. We can again have a question from my left side. यस हेलो सर, मेरा प्रश्न मोहन सर से है और मेरा नाम प्रशांत मानव है और मैं एमपीजे बैच का न्यू स्टूडेंट हूँ। सर, क्लाइमेट चेंज का क्या असर है वो आपसे बेहतर शायद ही कोई जान पाएगा। सर, मेरा प्रश्न ये है, क्लाइमेट चेंज का पूरा कहर आम आदमी के ही ऊपर टूटने वाला है, लेकिन फिर भी उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है। ये पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट ये सब बच निकलेंगे क्योंकि इनकी संख्या जो है लगभग 1% ही है। दुर्भाग्य यह है कि यही सब लोग समाज के रोल मॉडल बने हुए हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं, जिससे कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो युवा साथी हैं इन्हीं सब लोगों को अपना रोल मॉडल मान रही है। और क्या इन्हीं सब लोगों को रोल मॉडल मानना जरूरी है क्या? ये मेरा प्रश्न है सर। नहीं, ये सब बात मत पूछिएगा। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। दोष हमारा खुद का ऊपर में है। अगर मैं लाइफ में कुछ कामयाबी नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मेरा खुद का ऊपर में है। मेरा चिंता का कुछ ये है, तो उन लोगों को रोल मॉडल मानना है या नहीं मानना है, ये खुद का ऊपर में ये निर्भर करता है। लेकिन मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ एक लिमिटेड एरिया में, एक शहर में 24-25 फैमिली रहता है। अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात करते रहे, 24-25 फैमिली रहता है एक लिमिटेड एरिया में, जहाँ पे 10 प्लांट उगाना भी मुश्किल होता है। लेकिन हमारा एक गांव में हार्डली 24 से 36 तक फैमिली रहता है, बहुत सारे ह्यूज एरिया में। दे हैव अबंडन प्लांट, अबंडन फूड, सो हु आर लिविंग इन दैट particular place in city, and they have lots of money, they can buy anything from the market, they have their life के लिए सब कुछ है। they उन्नत, they चिकित्सा कर सकते हैं, लोगों को साल को पढ़ा सकते हैं। लेकिन they have to, if they think about the angle of the humanity, they need to think about those people who are doing something for them, who are conserving the plant, trees and lands for their food, for their health and for their everything. So maybe I'm trying to just give you an answer. I don't know you are satisfying or not. That's all. Thank you.